گی اپنی بڑی بہن سے. وہ ایسی بہن ہے میری کہ جب مجھے کوئی مشکل ہوتی تھی, جب مجھے کوئی پریشانی ہو رہی ہوتی تھی, تو وہ میری ہر بات کو سمجھ لیتی تھی. میں جو کہنا چاہتی تھی وہ اس بات کو سمجھتی تھی اور مجھے بتا دیتی تھی کہ تم یہاں پہ پریشان ہو. ایون اگر میرا ہوم ورک نہیں ہوا ہوتا تھا تو وہ خاموشی سے بیٹھ کے میرا ہوم ورک کر دیتی تھی, میری ڈرائنگس بنا دیتی تھیں. ڈرائنگس بہت اچھی ہوتی تھی. تو خیر ان کا بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے ان کو اپنے شو پہ بلایا ہے. ویلکم حزیلہ باجی کا. پہلے تو تم اپنی امی کا شکریہ ادا کرو. جی, اور میں سب کو, ساری دنیا کی ماؤں کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گی. اور ماں تو ماں ہوتی ہے, سراپا محبت ہوتی ہے. اور میں سمپل یہ بولوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مطلب جو اپنے محبت کا جذبہ اتارا ہے وہ ماں کے دل میں اتارا ہے, کہ اپنی محبت کو بھی اس نے اگر کمپیئر کرا ہے تو صرف ماں سے, کہ میں 70 گنا, مطلب آپ خود سوچ سکتے ہیں سب لوگ کہ ماں کیا ہستی ہوگی کہ جس سے اللہ میاں نے مقابلے پہ لایا ہے, کہ مطلب ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے تو اس کو لایا ہے. باقی ساری محبتیں جو ہیں وہ ایک طرف ہوتی ہیں, دنیا کی محبت ساری محبت, مطلب کچھ تو امپورٹنس ہوگی ماں کے دل میں, ماں کی محبت میں, جب بھی اللہ میاں نے اس کو مینشن کیا ہے. اچھا, پہلے تو آپ بھی ایک ماں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کیا فیل ہوا تھا جب ابیر گود میں آیا تھا؟ وہ مومنٹ تو کبھی نہیں بھول سکتے, کبھی نہیں. وہ دنیا کا سب سے حسین لمحہ ہوتا ہے. میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ وہی ہے جب میرا بیٹا میری گود میں آیا تھا. تب احساس ہوا تھا آپ کی ماں آپ کے لیے کیا ہوتی ہے, جب میں نے جانا تھا کہ میری ماں میرے لیے کیا ہے. بس اور کچھ نہیں کہوں گی میں. اس وقت آپ کے احساسات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ماں کیا ہستی ہے. اس وقت احساس ہوتا ہے جب آپ خود ماں بنتے ہیں. بالکل, ہمیں اسی وقت ریلائز کرتے ہیں جب ہمارا بچہ آتا ہے. ہم وہ پہلی رات ہمارے اوپر آتی ہے جب ہم اس کے لیے جھانکتے ہیں, جب ہم اس کی تیمارداریوں میں لگے ہوئے بچے ساتھ, اور پھر بہت برا لگتا ہے جب بچے ہماری بات کو بالکل. اور میرے لیے تو میرے بہن, یہ بھائی چھوٹے, یہ بھی میرے بچوں کی طرح ہیں. ہماری بہن ہے. بالکل, مجھے جیا کا ہر چیز میں تم ساتھ باسی کی ہوتا تھا کہ ہم خود کہتے تھے جیا اب میں نے کہا اب تو چھوڑ دو, لیکن جیا اور میں ہمیشہ ساتھ ہر چیز. امی کو نہیں تو مجھے پتا ہوتی تھی جیا کی کس طرح کیا کرنا ہے کیا نہیں ہر چیز میں. اور جیا جیسی بہن بھی ہونی چاہیے, جیا جیسی بہن بھی ہونی چاہیے. میرے بہن بھائی بھی اتنے اچھے ہیں, مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں. مجھے کوئی چیز پسند آتی تھی تو میں امی سے وہ چیز لے لیتی تھی, اور حزیلہ باجی کے پاس وہ چیز جاتی تھی کہ وہ ہمیشہ یہ بات بولتی تھی کہ نہیں آپ ہمیشہ ہر چیز حزیلہ باجی کو دے دیتی ہیں, تو یہ چیز میری ہمارا گھریلو ایشو. میں اس کا بھی سوری کر لیتی ہوں تم سے یہاں پر. پھر وہی والی بات آئے گی کہ تم میرے لیے کوئی الگ نہیں ہو, میرا حصہ ہو, میری بہن ہو. لیکن بہن کا بھی بالکل وہی رشتہ ہوتا ہے جو ماں کا ہوتا ہے. امی کبھی بھی بولتی ہے, امی اپنی محبت سے مجبور ہوتی ہیں, اور پھر میں یہ کہتی ہوں نہیں امی جیا کو دے دیجیے. امی پہلے مجھے دکھاتی ہے کیا کروں, امی سینڈوچ ہوتی ہیں ہماری. کہتے وہ چھوٹی. اچھا تینوں تو یہاں پہ ہیں, ایک ابھی بتائیں کہ آپ کس کو سب سے زیادہ چاہتی ہیں, آج آنے بتائیے. میں نے تم سے جو کہا ابھی کیا بتایا تھا تم کو, کہ بس جو ذرا فرما بردار ہوتا ہے, جو خیال رکھتا ہے, ذرا سا سوچ لیتا ہے, پھر سب چھوٹے ہوتے ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں, ویسے بات کہیے چلے گئے نکل گئے. تو چھوٹے ہو نا, مقصد پہلا جو ہوتا ہے نا, پہلا بچہ جو ہوتا ہے اس پہ سب چیزیں لاگو ہوتے ہیں, ہر چیز پورا فوکس پورا کمپلیٹ ہوتا ہے. بیچارہ پہلا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز پکتا بھی زیادہ ہے, وہ فوکس میں زیادہ رہتا ہے. جیسے میرا بیٹا ہے اس پہ اتنی زیادہ توجہ رہی ہے, اور میرا دوسرا جو بیٹا ہے وہ بہت ہائپر ہے. مطلب میں وہی ماں ہوں لیکن بہت ڈفرینس ہے دونوں بچوں کی تربیت میں, دونوں کی نیچرز میں بہت ڈفرینس ہے. بس یہ فرق آ جاتا ہے, نہیں تو ماں کے لیے اولاد برابر. اس کو چاہتے ہیں اس کو یہ نہیں ہوتا. ہاں ہوتا وہی, کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا کہ کون کس کو زیادہ چاہتا ہے کون کس کو نہیں. بالکل بالکل. بچوں میں بس وہ فیلنگ آ جاتی کہ نہیں ہے, ہاں کہ بھائی نہیں ہے وہ ہم اس کو چاہ رہے ہیں, ہم اس کو
वही दिल, वही माँ के लिए वो चीज़ है। सख्त कह देगी लेकिन बाद में अंदर से वो रहेगी, मैंने ऐसा क्यों कहा नहीं, फिर फोन करेगी, पूछेगी, ये चीज़ हाँ, होती है। बिल्कुल। कैसे पता लग जाता था? मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं कभी कोई चीज़ सोच रही होती थी और तुमको पता लग जाता था। बस अल्लाह मियाँ ने कुछ इस तरह डाला हुआ है। वाकई मेरी बहन मेरे लिए, मेरे बहन भाई बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शायद बच्चों की तरह ही है कि अम्मी जिया की को मैं वजह बहुत से? अच्छी तरह, हाँ क्योंकि अम्मी ने हम लोग को बहुत बिल्कुल, इतना हम लोग में एक रखा है यूनिटी और एक मोहब्बत सब बहन भाइयों में होती है नेचुरली, लेकिन ये कि मुझे एटलीस्ट जिया का सब कुछ पता होता सब कुछ पता होता था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अम्मी क्या कहना चाहेंगी? माँ के लिए हमारा टाइम तो बिल्कुल बेटा मेरा यही कहूँगी कि हर माँ को चाहिए कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश करे और उनको ये बताए बड़ों की खिदमत करना, रेस्पेक्ट करना, कि जिस तरह हमारी माँ ने हमें वो किया, आज उसी का वो है कि मैं आज पूरे उसमें जो है मैं हर कोई मुझसे इतनी मोहब्बत इतनी देती है, तो बता तो हमारे बच्चे है। सब मेरी तो जरा सी तबीयत खराब हुई, मालूम है पूरे ऊपर से चले जाए सारे दर्द कि भाई, तो एक वो होता है ना, तो पहले यही था ना, आजकल की जो है इतनी औलाद जो है ना, अच्छा औलाद को ये है कि बाज़ों को ये होता है कि उसको इतना वो नहीं होता है, लेकिन माँ तो समझती है कि हाँ भाई ये औलाद चाहे उसकी इतनी हो सकता है किसी देखे ना, पहले जैसे मोहम्मद अली जौहर भी अम्मा, हाँ क्या शानदार थी, कहने को वो घरेलू खातून थी, उन्होंने इस तरह के वो पैदा किए कि आज देखें उनके क्या नाम है, अल्लामा इकबाल हैं, सारे इस तरह के। मतलब एक औलाद की सक्सेस और इसकी तो ये है ना, उसमें माँ ने मिला तरबियत सबसे ज्यादा माँ का होता है। हाँ, लेकिन सब एक माँ बहुत परेशान हो रही है और वो अपने बच्चों की तरफ कोशिश कर रही है कि वो संभाल ले। जब प्यार करें माँ बाप से, अपने बाप से प्यार करे, लेकिन औलाद टाइम निकालें। हाँ, अच्छा एक एक करके आप लोग मैसेज देते हैं सारी माओ को प्लीज। हाँ, कि वो यही मैसेज है कि भाई आप लोग करें, अपने बच्चों की ज्यादा तवज्जो दें पढ़ाई पे, उस पे, और यही है कि और जो बच्चे हैं बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो वो भी अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, जिस तरह से उन्होंने बचपन में उनको मोहब्बत दी है, पाला है, इसी तरह से। दूसरी बात ये है कि जब से वो मोहब्बत के भूखे होते हैं, वही बूढ़े होके बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। इंतजार करना क्या हमें कोई आके कहेगा, अरे बच्चे तो ये सोचते हैं ना क्या अम्मी को देरी कर लेंगे, ये खा लेंगे, खाना है, खाने के लिए बुला रहे हैं, आ जाओ, फोन किया जा रहा है। हाँ। ये होता सिर्फ मोहब्बत से मजबूर होते माँ बाप को, कुछ नहीं होता, क्या चाहिए होता। हाँ। एक प्यार। ओल्ड हाउस से आज देखे, उस घर में जाके देखे किस कदर रोना आता है, कैसे कैसे औलाद हैं जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, खुदा अपने औलाद ऐसी है कि वो ओल्ड हाउस में है कि वो वहाँ बैठ के डर लगने लगता है, यकीन करें। बच्चे हमारे कहते हैं अम्मी क्यों आप हो रही, लेकिन दुनिया आप सबसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? नहीं बेटा, तुम लोग वो अल्लाह में, अल्लाह ना करे ना मेरी औलाद, खुदा का शुक्र है बहुत लायक है अल्लाह ताला को। सारी औलादें थोड़ी ऐसी होती हैं, लेकिन उनके लिए जो उन लोगों के लिए खुदा जाके उनको निकाले और अपने घर ले आए। बिल्कुल, वहाँ के लिए एक तोशा बनाए कि जो जहाँ पर हमेशा के लिए कमाए, यहाँ पर जो दुनिया है, दुनिया तो फानी है भाई, कोई सारा माँ के कहते हैं ना जन्नत की माँ से है, बिल्कुल। तो मतलब आपने जन्नत इस तरह जन्नत ही तो बनाना होता है, ये क्या है जन्नत बनाना है बेटा, ये सारी चीजें खट्टी होती है तो जन्नत। माँ की दुआ जो है, माँ कभी बददुआ तो नहीं देती, लेकिन माँ की दुआ हर लम्हे माँ की जो दुआ होती है अगर आपके साथ मैं इतना रोज मिल जाती हूँ। और अगर अम्मी हमेशा फूकना, कहीं भी होना, आप सोते में सोच के हमेशा फूकना वगैरह, लेकिन ये होता है कि अगर नहीं अम्मी कभी मुझे फूकें या मतलब जिस तरह मुझ पर दुआ ना दें और मैं निकल जाऊं, लेकिन एक दिल में एक वो होता है कि अम्मी की दुआ अम्मी की दुआ साथ ही आज। दूसरी बात अम्मी ये का है मैं कि बताती जब हूँ। बच्चों को आप तालीम, ठीक है बच्चों को आदमी एडमिशन कराता है, स्कूल वो है, घर में भी एक दीनी तालीम भी है, तो मेरा ये मकसद है कि ये ज़रूरी है कि बच्चे को जब कुरान शरीफ वो किया जाए तो मानी के साथ उसको वो किया जाए, ताकि उसको पता चले कि क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको पूरी मालूमात वो हो कि अल्लाह ताला ने हमें क्या हमारे लिए वो किया है इसमें, इस किताब में जो है, तो वो जब पढ़ लेगा मानी के साथ तो उसको खुद पता चलेगा कि ये एक किताब उतारी गई है, तो हमें उस पर अमल करना है।
आप अमल नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है वो और बहुत छोटी उम्र से आपको शुरू कर देना है, उस नहीं, एज का तो इंतजार नहीं करना। ठीक है वो तालीम है, लेकिन दीनी तालीम भी है ना। छोटी छोटी बातें बताएं, अच्छी चीजें बताएं, बच्चे हैं। यही आगे चल के उसकी अपनी लाइफ में उसको कामयाब करेंगी। क्योंकि पॉजिटिव अगर आप रखेंगे वही कि अच्छी तरबियत और उसका, तो आगे उसका रिजल्ट भी उसी तरह तरबियत आपकी बच्चे की बेस स्ट्रॉन्ग करनी बहुत जरूरी होती बिल्कुल है। आगे भी उसी को लेके चलता है बच्चा। जो बचपन से बातें कानों में पड़ती हैं, हमारी माँ ने आज हमें अच्छी बातें बताई हैं, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को वही जब सिखाएं। माँ तो बस मैं तो सिंपल ये बात बोलूंगी कि मीम से हजरत जी अम्मी की डांट याद है? बहुत घूरने से डर लगता है। अम्मी की आंखों से ऐसी घूरी वो उस घूरने से ना अम्मी के तो अभी भी डर लगता है। तो हम लोग भी यही होते थे, हम लोगों को कभी आँखों से एक डर आँख लगता जो है ना वो काफी होती थी। के बच्चे कहाँ आजकल का नहीं, हम तो समझते हैं यार अम्मा, ऐसी बात नहीं है। ये बच्चे देखो ना, माँ की आंखों से डर लगता था हमें। तो बोलने की, मुंह से बोलने की तो बहुत दूर की बात होती है। आंखें अम्मी देखने की की आंखें जगती थी। और माँ अगर क्या चाहती स्पेशली है? और एक सबसे बड़ी बात तो ये होती थी कि सबसे अम्मी एक चीज आज तक नहीं समझ में आई, हम जब दूसरों के घर में जाते थे कभी तो अम्मी हमें मना करके जाती थी कुछ खाना नहीं, और अगर हमने कुछ उठा लिया तो वो अम्मी की आंखें आती थी और हम लोग वहीं डर जाते जाते जो हमारा मतलब कि मेरा और हम भूखे लोगों के घरों से वापस आ जाते थे अपने घर के ये अंदर। बता दिया कि हाँ अब वहाँ चल के स्टोरीज बन रही है, हाँ ये खा के आए हम लोग बिल्कुल मजे की बात ये होती थी, बाज़ सबका डिफरेंट होता था। इन्होंने कुछ खाया, उन्होंने कुछ खाया। और निकल गए, हम कुछ ले भी गए तो अपना पहले लेने से पहले अम्मी को देख रहे हैं। हाँ, ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और एक और बात, ये क्यों पूछते थे? ये सबके अंदर होता है। मैं हमसे आपकी अम्मियों के अंदर भी चीज होती होगी, कोई मेहमान आया आपके घर पे और आपने उनको सलाम किया, या आप कहीं गए हैं तो आपसे सबसे पहले सवाल होता था आपने सलाम नहीं किया बेटा? आपने सलाम किया? नहीं अम्मी हमने सलाम किया है। और क्या नहीं तो बेटा देखो वो चीजें है ना पहले की, तुम्हें अब आदत है तुम लोगों की अपने बच्चों को भी। और ये कि कोई आए पहले आप सलाम करें, जाके मिले हमसे बैठे, चाहे फिर आप थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। बिल्कुल। तो वही आदत पड़ी रही ना आप लोगों की, तो वही है। आजकल तो कोई रिस्पेक्ट है, कौन आया? अच्छा ये चचा थे, कौन है? हमारी अच्छा, अम्मा का तो हमारे बस वो नहीं आए- करता, पता नहीं सबसे मिलवाती थी हमें। जी हम जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइफ के साथ में। आज मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवा रही हूँ मदर्स डे स्पेशल में, और एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत आज का दिन मुबारक हो। ये कितनी अजीम हस्ती है कि जिसके लिए हम जितनी भी बात करें कम है, लेकिन आज का ये स्पेशल दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया भर में। तो एक दफ़ा मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, वाइफ टीवी की तरफ से तमाम माओं का हम सलाम करते हैं। एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद देते हैं। इस दिन पे अभी जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइफ के साथ।